Hello and good morning students. Welcome back to your online session class of social studies. So today we are going to start with our civics chapter number 5 Panchayati Raj. Now what is Panchayati Raj students? Panchayati Raj is related to the word Panchayat. I hope you all have heard this word Panchayat. In this chapter we are going to learn about what is Gram Panchayat, what is Gram Sabha, how does it work. So I'm going to start with. It is a special day today. Everyone is rushing to get to the Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. Now what is Gram Sabha students? See in this picture, many people are sitting here and only 5 people are sitting here. Why so many people are sitting here? The people who are sitting here is known as Gram Sabha. ये होती है ग्राम सभा जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जो भी डिस्कशन होता है वो लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं. और ये होती है, ये जो 5 लोग हैं, ये होती है पंचायत. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है. पहली बार जब इन लोगों ने अपना ग्राम पंचायत इलेक्ट किया था. ग्राम पंचायत को कौन इलेक्ट करता है? इन लोगों को कौन इलेक्ट करता है? इन लोगों को इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा, ये लोग. What is Gram Sabha? Underline this. The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a पंचायत. जो उस पंचायत में एरिया आता है, सपोज ये एक विलेज है और इसकी ये पंचायत है विलेज की, तो इसमें जितने भी एरिया आएंगे ये सब होते हैं ग्राम सभा. ये एक मीटिंग होती है उन एडल्ट्स की. एडल्ट्स मीन्स दोज हु आर 18 or above, 18 years of age or above. This could be only one village or a few villages. In some states, as an example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years or more who has the right to vote in the member of the Gram Sabha. Gram Sabha का member कौन होता है? This is underline, important, underline this. जो 18 years से बड़ा हो या फिर 18 years का हो, उससे उसके पास राइट होता है ग्राम सभा में वोट करने का. The people of Hardas village. This is a village called Hardas. इस village का name है Hardas. The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. Gram Sabha. Now here a story starts. Gram Sabha meeting begins with a panchayat president who is also called सरपंच. Underline this. ग्राम सभा मीटिंग शुरू होती है एक पंचायत प्रेसिडेंट से जिसको हम सरपंच भी बोलते हैं. अब यहाँ पे 5 पीपल हैं. इन 5 में से कोई भी पंचायत प्रेसिडेंट हो सकता है या उस गांव का सरपंच हो सकता है. एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच. और जो ये मेंबर्स होते हैं, ये पंचायत के जो मेंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं पंच. Presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. अब क्या हुआ, ये लोग पहले डिस्कशन करते हैं कि विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट कर दिया जाए. जो रोड्स हैं विलेज के उसको डायरेक्टली हाईवे से कनेक्ट किया जाए. और फिर इसका फोकस आता है सीधे वाटर, पानी की कमी पे. टर्न योर पेजेस स्टूडेंट्स. Every village panchayat is divided into wards, that is smaller areas. Underline this. हर एक विलेज पंचायत जो होती है, हर एक गांव की जो विलेज पंचायत होती है, हम उसको वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब स्मॉलर एरियाज में. ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर. हर एक वार्ड से, सपोज ये एक विलेज है, ये हमने इस विलेज को ऐसे डिवाइड कर दिया. तो अब हम हर एक एरिया से एक वार्ड मेंबर को इलेक्ट करते हैं. और हम डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट्स पंचायत को जाके तो नहीं बता सकते, तो हम अपनी जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो वार्ड मेंबर को बताते हैं और वो वार्ड मेंबर फिर उन ग्राम सभा को जाके सारा प्रॉब्लम बताते हैं. एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, दैट इज स्मॉलर एरियाज. यू हैव टू अंडरलाइन दिस. स्मॉलर एरियाज up till smaller areas. Each ward elects a representative who is known as the ward member, panch. All the members of the Gram Sabha also elects a sarpanch who is the panchayat president. The ward panch and the sarpanch from the Gram Panchayat. The Gram Panchayat is elected for 5 years. This is important. जो ग्राम पंचायत होती है वो कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है? It's 5 years.
The Gram Panchayat has a secretary who is also the secretary of Gram Sabha. This person is not an elected person but is appointed by the government. The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. ग्राम सब पंचायत जो होती है उसमें एक सेक्रेटरी भी होती है. ये सेक्रेटरी को लोग अपॉइंट नहीं करते. इस सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. द गवर्नमेंट अपॉइंट दिस सेक्रेटरी एंड ये सेक्रेटरी का व्हाट्स द वर्क ऑफ दिस सेक्रेटरी. सेक्रेटरी क्या करते हैं, ये लोग जो भी डिस्कशंस होते हैं या जो भी किसी भी चीज़ के बारे में बात होती है तो ये लोग उस चीज़ का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और इनको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी दी जाती है. A villager called Tijia begins the meeting by saying, "The water problem in Hardas has become very acute." विलेजर है एक, हरदास विलेज में रहने वाली एक विलेजर है, उसका नेम है टीजिया. और वो बोलती है कि जो गांव में जो वाटर प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है. एक्यूट मतलब सीरियस हो रही है. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. जो हैंड पम्प का पानी जो आता था वो भी बिल्कुल खाली हो गया है और बिल्कुल जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है. We hardly get any water in the taps. Women have to go to Suru river which is 3 kilometer away to the water. और जो वुमेन है उनको 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है वाटर लाने के लिए. One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. अब एक मेंबर ये बोलता है कि हम डायरेक्टली सुरू रिवर से कनेक्ट कर लें पाइप लगा के और हमें डायरेक्टली सुरू रिवर से वाटर आए. बट द अदर थिंग्स दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव. दूसरे लोग सोचते हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली. इट्स बेटर दे फील टू डिपेंड द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन. टीजिया बोलती है कि ये अच्छा होगा कि हम हैंडपम्प को थोड़ा सा और गहरा कर दें, तो और डीप कर दें और जो भी वेल्स हैं, जो भी कुएँ वगैरह उनको इस सीज़न के लिए साफ़ कर दें. दिस इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू डू समथिंग मोर. ये इनफ नहीं है, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा. मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर. वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड. हम पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जितना पानी ग्राउंड में है हम उससे ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं. Another member Anwar then tells everyone that he has seen ways of conserving water and refilling it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. अनवर एक हरदास विलेज में रहने वाला है, तो वो बोलता है कि वो एक बार महाराष्ट्र गया था अपने भाई के पास, तो उसने वहाँ पे देखा एक प्रोसेस जहाँ पे पानी को रीफिल किया जाता था और उस प्रोसेस को बोला जाता है वाटर डेवलपमेंट. एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर ऑल दिस वर्क. वाटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि पानी को इस तरीके से रोका जाता है कि वो एकदम से ना बहे. जैसे जो रेन वाटर है वो बह जाता है जल्दी, तो यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं. बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं इसलिए जिससे वो प्लांट्स जो है वो पानी को सोख लें और एकदम से उसे बहने ना दे. ये महाराष्ट्र में अनवर ने देखा था और अनवर ने ये बोला कि गवर्नमेंट इसके लिए पैसे देती है. In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea, and the Gram Panchayat was asked to find out about it in detail. सबको ये आइडिया अच्छा लगा और ग्राम पंचायत ने बोला कि आप इसके बारे में और रिसर्च करें. The next item on the agenda of the Gram Sabha is the finalization of list of people below the poverty line (BPL), which had to be approved by the Gram Sabha. जो next इनकी प्रॉब्लम थी वो थी बीपीएल की. अब बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन. जैसे गवर्नमेंट एक बाउंड्री सेट कर देती है कि जो लोग इतने रुपए से कम कमाते हैं पर डे उनको कंसिडर किया जाता है बीपीएल. As soon as the list is read out, people begin to whisper. Natwar had just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. जैसे ये लिस्ट आती है तो लोग बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि जो नटवर है उसका भी नेम है बीपीएल में, जबकि उसने तो एक कलर टीवी ली थी और उसने अपने बेटे को एक मोटरसाइकिल भी लेकर दिया, तो फिर वो क्यों बीपीएल से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन. सूरजमल mutters to the person sitting next to him. सरोज says to सूखीबाई, how did बिरजू's name get on the list. जो सरोज है वो सूखीबाई से बोलती है कि बिरजू का नेम इस लिस्ट में कैसे आ गया, बीपीएल में कैसे आ गया. ही हैज़ सो मच लैंड. बिरजू के पास तो बहुत सारी ज़मीन है. दिस लिस्ट शुड बी
should have only poor people, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet. और ये लोग बोलते हैं जो ओम प्रकाश है वो तो लैंडलेस लेबर है। लैंडलेस लेबर मतलब जिसके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है और जो मुश्किल से अपना घर चला पाता है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर। फिर वो लोग आपस में बोलते हैं कि जो नटवर और बिरजू है वो अमीर चंद के फ्रेंड है और अमीर चंद की पावर को कौन रोक सकता है। सूखी बाई बोलती है अमीरचंद वॉज अर्लियर ज़मींदार। अमीरचंद पहले एक ज़मींदार होता था of the village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in. But हमें ओम प्रकाश का नेम इसमें डलवाना चाहिए, लोगों ने बोला। The सरपंच पंचायत president noticed people whispering and asked if anyone has anything to say. सरोज tries to provoke। फिर यहाँ पे स्टोरी में ये दिया हुआ है कि जो सरोज थी वो बोलती है, प्रवोक करती है सूरजमल को कि वो नटवर और बिरजू के बारे में बोले, लेकिन उसने नहीं बोला, सूरजमल ने नहीं बोला। तो फिर क्या होता है, सरोज खुद ही उठती है और बोलती है कि इस लिस्ट में ओम प्रकाश का नेम क्यों नहीं है, जबकि वो तो इतना ज़्यादा पुअर है तो भी उसका नाम नहीं है बिलो पॉवर्टी लाइन में, बीपीएल में। तो पंचायत उसे बोलती है कि इस बारे में पता लगाएं और ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ पंचायत पूछती है अमीरचंद से। तो अमीरचंद बोलता है कि मैं तो जब उसके घर गया था तब वो बाहर था और मैंने जब देखा तब वो घर पे नहीं था, इस वजह से उसका नेम हट गया लिस्ट से। तो पंचायत बोलती है कि आप उसका नेम सर्च करो और उसका नेम लिस्ट में डालो। नाउ हियर वन बॉक्स इज गिवन। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत play its role and be responsible. Underline from here till here, underline students। जो ग्राम सभा है इस द की फैक्टर, जो ग्राम सभा है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ग्राम पंचायत अपना एक अच्छे से रोल प्ले कर पाती है और वो इतनी रिस्पॉन्सिबल भी होती है। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर ऑल द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। ग्राम सभा एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी ग्राम पंचायत के जो भी प्लान्स होते हैं कि वो आगे क्या करेगी वो लोगों को बताया जाता है। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। तो ग्राम सभा है वो पंचायत को गलत काम करने से भी रोकती है कि ताकि वो अपनी पावर जो भी मनी है उसको मिसयूज़ ना करे और किसी पर्टिकुलर इंसान को फेवर ना करे। It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elect them। और जो लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं, जो भी ग्राम पंचायत को इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये लोग उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहें कि मतलब ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि जिन्होंने इनको इलेक्ट किया तो ये उनके लिए कुछ काम करें। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम पंचायत। सो वी विल स्टडी दिस चैप्टर in the next class. Till then, if go through the chapter once, and if you are having any doubts you can ask me. Thank you.